Well, my dear students, good morning to all. In previous class, we have studied up to C, means up to fill in the blanks. Okay, true and false, fill in the blanks, and what multiple choice question, that all things over. Now today we will study crossword. Open your textbook, page number 314, given that one. Okay. Now across. Across means horizontal. Here boxes are also there. Across means horizontal. Which boxes? 2, 5 and 6. These are called across. Means in this way. This way it is called, in this way it is called horizontal. Okay. So which columns are there? Means which number 2, number 5 and number 6. 2, 5 and 6. These three sentences are across. So we have to write here also answer in dash given that one, and we have to complete in these boxes also with capital letter. Okay. First we will write here, afterward you complete there. Okay. Now in the fraction 3 by 4. This fraction is given 3 by 4. The bar, this is called what? Bar. Small line is called bar. Between 3 and 4 is called dash. What is the name of that bar? It is called vinculum. It is called vinculum. vinculum. It is called vinculum. vin. Okay. vinculum. How many words are there total? Here given 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now next. The number name of 1 by 4 is 1/4. The number name of 1 by 4 is 1/4. F-O-U-R-T-H. F-O-U-R-T-H. Total letter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now next. Sixth. In the fraction 7 by 12. 12 is the dash. 12 is called, 7 is numerator and 12 is called what? Denominator. It is called denominator. 12 is the denominator. D-E-N-O, denominator. M-I-N-A-T-O-R. How many words total? Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Now down. This is across. We have completed. Now down also given. First, down means vertical. First column, again third column as well as fourth column. So first, third and fourth. So at first we will complete this first. The unshaded part in the given figure represent dash fifth. Here how many equal parts? 1, 2, this figure is given. The 1, 2, 3, 4, 5. So total equal parts 5. Now here ask the unshaded part. How many unshaded parts are there? 1, 2, 3, 4. So the fraction for the unshaded part will be 4 by 5. The unshaded part in the given figure represent dash fifth. So what is that? 4/5. So here we have tried F-O-U-R. 4/5. Understood this one? So note down this. Now third one, look that it is given in the fraction 2 by 3. 2 is the dash in the fraction 2 by 3. 2 is called what? 2 is written above the line. So that's why it is called numerator. It is called what? Numerator. N-U-M-E-R-A-T-O-R. How many words? Count that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So understood? 9 words are there total. Now last one. For the fraction 4 by 7, the dash has been divided into 7 equal parts. 4 by 7 means dash has been divided into 7 equal parts, and 4 of them have been taken. 4 out of 7, 4 have been taken out. Means in the fraction 4 by 7, the total how many equal parts? 7. Means the whole, that is called whole. The whole has been W-H-O-L-E. Whole. The whole has been divided. Okay. In the fraction, this 7 is called total number of equal parts. Means whole, we can say, has been divided into 7 equal parts, and 4 of them have been taken out. How many words? 1, 2, 3, 4, 5. So this is E. Okay. So note down this one. And afterward, you have to complete. You have to write in these boxes also. Whatever you are getting there in the fill in the blanks, you have written no answer that. Okay. So complete this also. So this is crossword. We have completed. Now last question looked at value based question. Value based what question? First I will read the question. For summer vacation, a teacher suggested that students spend 1/6 of a day doing homework and other learning activities.
1/3 of the day sleeping and rest of the time playing, helping elders at home, attending hobbies, classes, etc. Now here 4 questions were asked. A, B, C, D. First A, how many hours a day was to be used for doing homework? B question, how many hours a day was to be used for sleeping? C, how many hours a day was to be used for other things? And last D, what value does the teacher wants the students to learn through this? Okay, now what it is for summer vacation. Summer vacation मतलब धूपकाली की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां मिलती है ना, जैसा मई जून जुलाई मई वगैरह आता है तो उसमें छुट्टियां मिलती है मई जून की. फॉर समर वेकेशन, गर्मी के दिन में हमें छुट्टियां लगती है बच्चों को. ए टीचर, फिर उस समय टीचर क्या करे, एक टीचर क्या करे, सजेस्टेड दैट स्टूडेंट स्पेंड, यानी दिन भर खेलना नहीं, धूप में खेलना नहीं, टीचर कुछ सजेस्ट करे, यानी अपने राय दे रही है. सजेशन में मतलब अपना कोई ओपिनियन, यानी बच्चों के प्रति क्या बता रहे हैं मैडम, दैट ए टीचर सजेस्टेड दैट स्टूडेंट स्पेंड 1/6 ऑफ ए डे, यानी एक दिन में सिर्फ फ्रैक्शन दिया है यहाँ पर 1/6 ऑफ ए डे, यानी तुमको क्या करना है, डूइंग होमवर्क. एक दिन में 1/6 ऑफ ए डे, ये क्या कर मैडम बता रहे, इतना होमवर्क करते जाओ. 1/6 ऑफ ए डे फ्रैक्शन में लिखा है, ऐसा परफेक्ट कितने आवर खेलना है या फिर कितने आवर होमवर्क करना है ऐसा नहीं दिया है. एंड अदर लर्निंग एक्टिविटीज, 1/6 क्या के लिए, होमवर्क एंड अदर लर्निंग एक्टिविटीज के लिए, यानी और कुछ तुम कर सकते हो उसमें. 1/3 ऑफ द डे स्लीपिंग, सोने के लिए कितना दिया है यहाँ पर 1/3, और 1/3 ऑफ द डे स्लीपिंग एंड रेस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग, ये भी दिया है. फिर हेल्पिंग रेस्ट ऑफ द टाइम, और बचा वाला समय क्या करना है, बचा इन 1/6 फॉर ऑफ ए डे डूइंग होमवर्क, 1/3 ऑफ द डे स्लीपिंग, और बचा वाला समय एंड रेस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग, खेलना है उसमें, दिन भर पढ़ाई नहीं करना है, खेलना भी है. हेल्पिंग एल्डर्स एट होम, अपने से बड़े लोग रहते हैं जैसे दादा दादी, उनकी हेल्प करना है घर में, मम्मी पापा की, ठीक है. अटेंडिंग हॉबीज क्लासेस, जो भी तुमको कराटे वगैरह कुछ लगाना है, डांस क्लासेस वगैरह, वो क्लासेस भी लगा सकते हो बच्चे वाले समय में, एक्सेट्रा. अब यहाँ पूछा है पहला, हाउ मेनी आवर्स ए डे, एक दिन में वाज टू बी यूज्ड फॉर डूइंग होमवर्क, होमवर्क के लिए कितना दिया था, 1/6 ऑफ ए डे डूइंग होमवर्क, ठीक है. फिर वहां से ये फ्रैक्शन देखे तो वहां से ही हमें आंसर मिलेगा, कितने घंटे तुम होमवर्क करना है, यानी यहाँ से दिया तो यहाँ मिलेगा. उसी ढंग से हाउ मेनी आवर्स ए डे वाज टू बी यूज्ड फॉर स्लीपिंग, स्लीपिंग के लिए कितना दिया है, 1/3 ऑफ द डे वाज यूज्ड फॉर स्लीपिंग. ओके, फिर यहाँ से भी स्लीपिंग का निकलेगा. फिर हाउ मेनी आवर्स ए डे वाज टू बी यूज्ड फॉर अदर थिंग, यानी एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, दिन में 12 और रात के 12, यानी 12 + 12 24. इन वन डे देयर आर 24 आवर्स, ठीक है. ये भी पूछा है. फिर लास्ट में व्हाट वैल्यूज डज द टीचर वांट द स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू दिस, क्या है, किसके बारे में सजेशन दे रहे हैं मैडम, वो लिखना है इसमें. सो एट फर्स्ट यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन. ऑलरेडी इट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. ऑल्सो पेज नंबर, ओपन दैट टेक्स्ट बुक, पेज नंबर, लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर विच वन, 315, value based question. Okay, so note down that question first. Now first one, what it is asked, how many hours a day was to be used for doing homework. So question में देखना फ्रैक्शन में 1/6 of a day doing homework, 1/6 of a day doing what, homework. Now look at how to solve this one. In fraction it is given 1/6 of means which operation we have to give. Here of it is there, so you have to put multiplication. A day means in one day equal to how many hours? There are 24 hours. One day equal to 24 hours. Since one day equal to 24 hours. दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, 12 + 12 24. That's why 24 hours. Here you can write there hours. HOURS. Okay. Here is a given how a day यानी one day, एक दिन में 24 आवर होते हैं, ठीक है. अब ये ऑलरेडी सच टाइप ऑफ एग्जांपल वी हैव सॉल्व्ड. बिलो 24 नथिंग मींस यू कैन टेक देयर 1. सो क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, 1/6 फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन 24 के नीचे कुछ नहीं, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1. 24 डिवाइड बाय 1 यानी 24 ही आता है, इसलिए, ठीक है, आवर्स. अभी देखो ये कौन से फॉर्म में आया, a/b × c/d, दोनों फ्रैक्शन में है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन.
1 into 24 divided by 6 into 1. समझा है? 6 into 1. Now 1 into 24, 24 ones are 24 divided by 6 ones are 6. अभी ये डायरेक्ट इसको तुम डिवाइड भी कर सकते हो अभी 24 को 6 का 6 के टेबल में 6 1 जार 6 6 2 जार 12 6 3 जार 18 6 4 जार 24 यानी कितने आवर्स आ रहे हैं यहाँ पर क्या आंसर है इसका 4 सो 4 आवर्स हेंस कितने आवर्स इसके लिए डूइंग होमवर्क के लिए देना है मैडम के हिसाब से कितने आवर्स देना पड़ेगा हाउ मेनी आवर्स ए डे वाज टू बी यूज फॉर डूइंग होमवर्क हेंस 4 आवर्स हेंस 4 hours a day was to be used a day was to be used for doing homework was to be ये क्वेश्चन में है सिंपल was to be used for doing homework for doing होमवर्क समझ में आया इस ढंग से हम उसको सॉल्व करें क्योंकि फ्रैक्शन में देखे था इसलिए 1 डे की जगह 24 लगा उसको सॉल्व करो 6 का टेबल 6 4 24 ठीक है डायरेक्ट 4 आता है यहाँ पर या फिर उसका पूरा सॉल्यूशन बताया मैंने हेंस 4 आवर्स ए डे यानी एक दिन में 4 घंटे किसके लिए दिया गया है सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करने के लिए डूइंग होमवर्क सो दिस इज ए नाउ नोट डाउन दिस वन A1 नाउ बी इट इज आस्क्ड व्हाट इट इज आस्क्ड इन बी क्वेश्चन how many hours a day was to be used for sleeping sleeping के लिए क्वेश्चन में कितना दिया था फ्रैक्शन 1 by day of the day sleeping 1 by third of the day sleeping 1 by third of a day sleeping दिया है ठीक है 1 by third into आप यानी मल्टीप्लीकेशन a day यानी एक दिन में 24 आवर जैसा पहले किए थे हमने a सिर्फ वैसा ही करना वहां 6 था यहाँ पर है सिर्फ 3 है बाकी सब कुछ सेम है 1 by 3 into 24 by 1 below 24 we can take 1 now 1 into 24 1 into 24 by 3 into 1 1 into 24 24 3 ones are 3 so now divide this 24 by 3 3 के डबल में 24 3 8s are 24 3 7s are 21 then 3 8s are 24 okay यानी 8 आवर्स किसके लिए सिर्फ स्लीपिंग यानी आराम करने के लिए कितना वक्त देना चाहिए क्योंकि धूपकाले का समय वक्त है समर वेकेशन है इसलिए ज्यादा गर्मी होती है इसलिए धूपकाले में ज्यादा से ज्यादा आराम करना है यानी 8 आवर्स हेंस 8 आवर्स ऑफ ए डे कैन टू बी यूज्ड फॉर स्लीपिंग फॉर व्हाट यू हैव टू डू राइट हियर स्लीपिंग हेंस 8 आवर ए डे वाज टू बी यूज्ड फॉर स्लीपिंग सो अंडरस्टूड दिस वन सेकंड फर्स्ट वाली जैसा था वहां होमवर्क था यहाँ पर है स्लीपिंग सो नोट डाउन दिस वन बी आल्सो Now see question what it is asked here. How many hours a day was to be used for other things? For other things के लिए दूसरी चीज करने के लिए कितना वक्त देना पड़ेगा यहाँ कैसा है ना उसका 12 hours a day was to be used for other things. How 12 get this one looked at? पहले हमने फाइंड किए थे ए और बी में ठीक है ए में क्या फाइंड किए थे होमवर्क के लिए कितना वक्त देना पड़ा 4 आवर्स और स्लीपिंग के लिए आराम करने के लिए 8 आवर 4 plus 8 हाउ मच 12 आवर हो गए ठीक है ये 12 आवर्स हो गए थे आवर्स नाउ सिंस 1 डे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 फिर 24 में से 12 माइनस करने का 24 आवर्स माइनस 12 आवर्स बचे वाले कितना है 12 सो 12 आवर्स फॉर डूइंग अदर थिंग्स दैट्स व्हाई 12 आवर्स ए डे वाज टू बी यूज्ड फॉर डूइंग अदर थिंग्स अंडरस्टूड सो ऑन द साइड आई हैव डन देयर रब सो नोट डाउन दिस सी आल्सो Now last question what it is given what value does the teacher wants the students to learn through this what value यानी क्या किसके बारे में बता रही है मैडम यानी टीचर the first one 2 points are here the student should respect their elders and help them in their work यानी बच्चों को हमें अपने से बड़ों का यानी क्या करना चाहिए रेस्पेक्ट यानी मान सम्मान देना चाहिए ठीक है पोलाइटली यू हैव टू टॉक विथ योर एल्डर्स उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए जैसे मम्मी पापा हो गए आपके फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए अदर पीपल ऑल्सो शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए मान सम्मान करना है एंड हेल्प देम इन देयर वर्क और बचे वाले वक्त में उनकी मदद भी करना है दिन भर काम यानी मम्मी पापा थोड़ी बोलते हैं कि घर के काम करते रहो करके पहले पढ़ाई करो फिर बचा वाले वक्त में उनकी मदद भी करना है हमें
वर्क एंड हेल्प देम इन देयर वर्क, उनके काम में थोड़ा अपना हाथ भी ये करना है, यानी बटाना है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, दे शुड ऑल्सो इन्वेस्ट देयर टाइम इन प्लेइंग, यानी बच्चों को सिर्फ दिन भर पढ़ाई नहीं करना है या फिर कोई काम नहीं करना है, और बच्चे यानी पढ़ाई करने के बाद जो भी वक्त बचता है उस बचे वाले वक्त में दे शुड ऑल्सो इन्वेस्ट देयर टाइम इन प्लेइंग, खेलना भी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी इंपॉर्टेंट है। गेम्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हैज स्टडीज, पढ़ाई भी करो और खेलना भी है साथ में, बिकॉज ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का, ठीक है ना। एंड अदर एक्टिविटीज फॉर रिफ्रेशमेंट, दिन भर पढ़ाई करते करते बोर हो जाते ना, तो थोड़ा पढ़ाई करने के बाद खेलना भी है आपको। एंड अदर एक्टिविटीज, जो भी आपकी हॉबीज है, जैसा डांस में होगा आपको इंटरेस्ट, डांस कर सकते, कराटे में वगैरह, ठीक है। ऐसे एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करके उसको यानी अपना रिफ्रेशमेंट करना है, ठीक है। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन फ्रैक्शन। So only one lesson for you in your unit test, evaluation second unit test, this fraction only. So in next period we will do revision of this lesson. So note down this one, first and second point.